السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، اس طرح کی پیاری پیاری ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیو سب سے پہلے ملتی رہے۔ پورس کی اصل قوت ہاتھیوں اور رتھوں پر منحصر تھی۔ ہاتھیوں نے سکندر کے فلانگ کو اپنے سونڈوں اور پیروں سے روندنا شروع کر دیا۔ مقابلہ اتنا نازک تھا، لیکن سکندر نے فلانگ کو آگے بڑھنے سے روک کر اتنی پھرتی کے ساتھ 1000 تیر اندازوں سے دشمن کے بائیں حصے پر حملے کا حکم دیا کہ پورس کی فوج بدحواس ہو گئی۔ اسی دوران ایک اور کمانڈر تازہ دم فوج لے کر پہنچ گیا۔ سکندر نے خود دائیں جانب سے حملہ کیا اور تیر کی طرح اندر گھستا چلا گیا۔ اس کا حملہ اتنا شدید تھا کہ پورس کے سپاہی اس پیش قدمی کو نہ روک سکے۔ ادھر فلانگ نے بھاری جانی نقصان کے باوجود ہاتھیوں کو آگے نہ بڑھنے دیا اور بھاگ بھاگ کر تیروں اور کلہاڑوں سے ہاتھیوں کی سونڈوں اور پیروں کو زخمی کرتے رہے۔ اسی دوران سکندر کا ایک اور کمانڈر چکر کاٹ کر پورس کی فوج کے عقب میں پہنچ گیا۔ سکندر اتنی شدت اور غیظ و غضب سے لڑ رہا تھا کہ اس کا گھوڑا تھک کر گرا اور مر گیا، لیکن اس نے فوراً ہی ایک تازہ دم گھوڑے پر چھلانگ لگائی اور پھر لڑائی شروع کر دی۔ پورس اپنی ہاتھی پر ڈٹا ہوا فوج کو بار بار مختلف ترتیب سے حملے کا حکم دے رہا تھا، حالانکہ وہ ہر سمت سے تیروں کی زد میں تھا۔ اس دوران پورس کی ساری فوج سکندر کے محاصرے میں آ چکی تھی۔ ایسی گھمسان کی جنگ ہوئی کہ انجام تک کا اندازہ دشوار تھا، لیکن اچانک پورس کے زخمی ہاتھی بدحواس ہو کر پلٹے اور انہوں نے اپنی فوج کو روندتے ہوئے بھاگنا شروع کر دیا۔ پورس کے سپاہی اس غیر متوقع آفت سے گھبرا کر تتر بتر ہو گئے اور مقدونیوں نے ایک بار بھرپور حملے سے جنگ کو انجام تک پہنچا دیا، لیکن پورس آخر دم تک ڈٹا رہا اور اس کی شکست خوردہ فوج نے راہ فرار اختیار کی، لیکن پھر بھی اس نے جان بچانے کی فکر نہ کی۔ جنگ ختم ہو گئی اور کچھ دیر بعد جب پورس کو گرفتار کر کے لایا گیا تو سکندر خود اس کے پاس پہنچا۔ دراز قد اور باوقار پورس کی دلیری نے سکندر کو بہت متاثر کیا۔ اس نے پورس سے پوچھا، پورس تم خود بتاؤ کہ تمہارے ساتھ کس قسم کا سلوک کیا جائے؟ پورس نے سر بلندی کر کے دلیری کے ساتھ جواب دیا، ویسا ہی سلوک جیسا بادشاہوں کے ساتھ کیا جانا چاہیے۔ سکندر اس جواب سے بہت خوش ہوا۔ ایسا ہی ہوگا راجہ پورس، لیکن تم بتاؤ کیا چاہتے ہو؟ میں نے جو جواب پہلے دیا ہے اس میں بھی سب کچھ شامل ہے۔ سکندر نے فوراً جنگ بندی کا حکم دیا۔ پورس کی رعایا کو عام معافی دی اور اس طرح دریائے جہلم کے کنارے پر واقع میدان میں ایک اور جنگ میں سکندر نے فتح و نصرت کا پرچم لہرا دیا۔ لشکر میں جتنے فتح شروع ہو چکی تھا، میرا دل اور لاش کی سلامتی کے دعائیں مانگ رہا تھا، جو سکندر کے ساتھ ہی دریا پار کر کے میدان جنگ میں زخمیوں کے علاج کے لیے گیا تھا۔ اچانک شاہی خیمے کا پردہ ہٹا اور سکندر اپنے محبوب کماندار ایمنش کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ دونوں کے لباس خون اور کیچڑ میں لت پت تھے، لیکن دونوں فتح کی خوشی سے سرشار۔ اسناکیہ میری جان، آؤ تم بھی ہمارے ساتھ جام نصرت پیو۔ ہم نے ہندوستان میں فتح کے دروازے کھول دیے۔ تمام کمانڈروں اور دوسرے سرداروں نے خوشی کے نعرے بلند کیے اور ہر ایک مسرت سے دیوانہ ہو رہا تھا۔ عورتوں نے اپنے اپنے شوہروں کی مرہم پٹی شروع کر دی۔ میں نے آگے بڑھ کر سکندر کی ذرا بختر اتاری اور اس کے جسم سے خون صاف کرنے لگی۔ خیمہ کہکوں سے گونج رہا تھا۔ سکندر نے ایک عام ضیافت کا اعلان کیا۔ اس ضیافت میں اس نے کمانڈروں کو خوش کرنے کے لیے ہر ایک کو سونے اور جواہرات کے بھاری انعام و کرام دیے۔ کئی دن تک فتح کا جشن جاری رہا اور اس کے بعد سکندر نے لشکر کو کوچ کا حکم دیا۔ ہم مسلسل فتح کرتے ہوئے آگے بڑھتے رہے۔ ہندوستان کے زور و جواہر کے خزانے سمیٹتے ہوئے دریائے چناب اور راوی کے علاقوں پر سکندر اعظم کی عظمت و کامرانی کے پرچم لہراتے بالآخر ہم دریائے بیاس کے کنارے خیمہ زن ہوئے۔ یہاں پورس اور دوسرے ہندوستانی سرداروں نے یہ خبر عام کر دیا کہ اگر سکندر نے اس سے ٹکر لی تو تباہ ہو جائے گا۔ یونانی سپاہی مسلسل جنگ و جدل اور طویل عرصہ تک گھر سے دوری کی بنا پر پہلے ہی بد دل ہو چکے تھے۔ ان خبروں نے ان کے حوصلے اور بھی پست کر دیے۔ سکندر اس صورتحال سے سخت برہم اور دل برداشتہ ہوا اور اس نے تمام کمانڈروں کا ایک اجلاس طلب کیا اور ان سے خطاب کرتے ہوئے کہا،
तुम सब ने अपनी शजाअत और दिलेरी से एशिया में अपने फतह नुसरत के परचम गाड़ दिए हैं। अब अगर हम इस तरह वापस चले गए तो सारे मफतू इलाके हाथ से निकल जाएंगे। मुझे मालूम है कि तुम सब थक चुके हो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि यहाँ से कुछ फासले पर वाक़या दरियाए गंगा तक का इलाका फतह करने के बाद मशरक़ में समंदर में बहता है, हम वहाँ से जहाज़ पर आराम के साथ वापसी का सफ़र शुरू करेंगे। सब खामोशी से सुनते रहे, लेकिन एक कमानदार बैतुलमूस ने हिम्मत करके सिकंदर से कहा, सिकंदर, हम प्रताप सिंह की कुव्वत से खौफ नहीं, लेकिन यूनानी सिपाही जंग करते करते नढाल हो चुके हैं, उनके लिबास फट चुके हैं, तैयार हथियार कुंद हो चुके हैं और कवा जवाब दे चुके हैं, और अब वो उससे आगे जाने के लिए तैयार नहीं। बैतुलमूस सच कह रहा है, हमारी बहादुरों ने बहुत ज़ोर जवाहर हासिल कर लिया, अब उन्हें किसी चीज़ की तमन्ना नहीं। क्या तुम सब ये चाहते हो कि इतनी अजीम शान फतूहात के बाद फातेह आलम बनने का सुनहरी मौका छोड़ दिया जाए? अचानक एमलच खड़ा हो गया और उसने सिकंदर से कहा कि हमें एतदाल पसंदी का सबूत देना चाहिए। हम में से बेशतर अपने वालिदैन और बीवी बच्चों की शक्ल को तरस गए, हम अब सब वापस जाना चाहते हैं। मैं फैसला करने से पहले अपने सिपाहियों से खिताब करूंगा, सिकंदर गरजा, और मुझे उम्मीद है कि वो मेरा साथ देंगे। बगल बजते ही लश्कर के हज़ारों सिपाही शाही खैमा के सामने जमा हो गए। सिकंदर ने बड़े एतमाद और जोश के साथ उनसे खिताब किया। उसका ख्याल था कि सपा उसकी तकरीर का पुरजोश जवाब देगी, लेकिन सन्नाटा तारी रहा। उसने फिर गुस्से से अपने दिलेरों के जोश व हमीयत को ललकारा, लेकिन सन्नाटा ना टूट सका। एक और कमांडर ने सिपाहियों की तर्जमानी करते हुए कहा कि सिकंदर आज़म, तुम्हारा इकबाल बुलंद है, हमने हमेशा तुमसे वफा की और हम हमेशा तुम्हारे वफादार रहेंगे, लेकिन इससे पहले कि इकबाल सिकंदरी को ठेस पहुँचे, अपने दिलेरों की बात मान लो और वापस चलने का ऐलान कर दो। यही तुम्हारे जानसारों की ख्वाहिश है। और उसके साथ ही हज़ारों आवाज़ें एक साथ तायद में बुलंद हुई, नहीं, अगर कोई मेरा साथ नहीं देगा तो मैं तन्हा पेशकदमी करूंगा। सिकंदर गरजा और पैर पटकता हुआ अपने खैमे में चला गया। 3 दिन तक वो तन्हाई में पड़ा रहा, ना उसने कुछ खाया ना पिया, बस रोता रहा। फातेह आज़म शहनशाह सिकंदर, जिसने कभी शिकस्त नहीं खाई थी, अपनी ज़िद से मजबूर था। मैंने महसूस कर लिया कि सिकंदर को पहली बार अपने ही आदमियों के हाथों शिकस्त कबूल करना होगी। मेरा दिल औलाश के लिए बेताब था। सिकंदर अपने खैमे में बंद पड़ा, वहाँ जाने की मुझे भी हिम्मत ना थी। उस दिन मैंने हिम्मत करके औलाश को अपने खैमे में तलब किया। एहतियात के पेश नज़र मैंने सबा को खैमे में ही रोक लिया। वो फासले पर पुश्त किए खड़ी थी, मैं बीमार बनी लेटी थी। औलाश मेरे बिस्तर के बराबर आकर बैठ गया और मैंने उसके दोनों हाथ गर्मजोशी से दबाते हुए कहा, मेरे मसीहा, मेरे महबूब, तुम जानते हो मेरी मर्ज़ क्या है, और उसका इलाज सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत है। मैं जानता हूँ असनाकिया, उसने ठंडी सांस लेकर कहा, लेकिन दरमियान में दीवार शाही को मेरी मोहब्बत भी नहीं तोड़ सकती। हमने वो दीवाना वार भी तोड़ दी। औलाश, मेरे बतन में तुम्हारी मोहब्बत की निशानी परवरिश पा रही है। मेरा ख्याल था कि वो खुशी से उछल पड़ेगा, लेकिन उसने घुटी हुई आवाज़ में कहा, असनाकिया, क्या वाकई, क्या ये सच है? हाँ औलाश, ये सच है, लेकिन मेरा ख्याल था कि तुम मेरी तरह खुशी से दीवाने हो जाओगे। क्या तुमको ये सुनकर मुसर्रत नहीं हुई? वो चंद लम्हे आंखें बंद किए बैठा रहा, फिर आहिस्ता से बोला, असनाकिया, मुझे माफ़ कर दो। उसने आबदीदा नज़रों से मुझे देखा, लेकिन ये किसी मसर्रत होगी कि मैं उसे देख सकूँगा, उससे मोहब्बत कर सकूँगा, लेकिन मैं उसे बेटा ना कह सकूँगा, कभी नहीं। वो अपनी सिसकियाँ दबाते हुए बोला, मैं तुमसे शर्मिंदा हूँ औलाश, मेरे पास तुम्हारे इस दर्द का कोई इलाज नहीं। मैंने आहिस्ता से कहा, तुम बेकसूर हो असनाकिया, बेशक हम दोनों मजबूर हैं, बेशक हमारी किस्मत में फ़ुरकत ही फ़ुरकत है, लेकिन याद रखना, मेरी तमन्ना मोहब्बत ना दूरी से कम होती है और ना कुर्बत की मोहताज। हम कहीं भी हों, किसी हाल में हों, हमारे दिल अपनी मोहब्बत की रोशनी से मुनव्वर रहेंगे। दुख, दर्द, जुदाई, ये सब कुछ मोहब्बत के आगे हकीर है। खुदा हाफ़िज़। मेरी दुआ है कि हमारी मोहब्बत से रोशन होने वाला चिराग हमेशा जगमगाता रहे। कुरोती बड़े तासर अंदेज लहजे में ये सब कुछ कह रही थी, और मेरे दोस्तों, मुझे पढ़ने वालों, ज़िशान अली पूरे एतमाद से ये बात कह रहा है कि तुम लोग मुझे अच्छी तरह जानते हो और समझते हो मैं मुतासर हो रहा था। एक इंसान की हैसियत से कोई गैर इंसानी बात करके मैं तुम्हें धोखा नहीं देना चाहता। कुरोती ने अब तक जो कुछ मुझे बताया था वो इस लिहाज से मेरे लिए बायसे तकलीफ था
कि मैं उसके साथ बहुत ही खूबसूरत वक्त गुजार रहा था और ये वक्त मेरे लिए एक हसीयत रखता था। उसके मुंह से ये मोहब्बत भरी दास्तान सुनकर मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। कुरोती ने मेरा चेहरा देखा और देखकर एकदम चौंक पड़ी। अरे तुम्हारी आंखों को क्या हुआ ज़ीशान अली? उसके इन अल्फाज में मैं चौंक पड़ा और मैंने एक मजमल से मुस्कुराहट के साथ कहा, मेरी आंखें, और उसके होंठों पर एक दिल आवेज मुस्कुराहट फैल गई। उसने बड़े पुरमोहब्बत लहजे में कहा, हाँ तुम्हारी आंखें। अब ये तो ना कहो कि मेरा सदियों तजर्बा झूठ है। मैं इतना तो पहचान सकती हूँ, और मैं सच बताऊँ, बेपनाह खुशी हुई मुझे तुम्हारी आंखों का ये रंग देखकर। अरे माँ बाप, मगर क्या कह रही है मेरी आंखें? झूठ तो नहीं बोलोगे मुझसे? बोलूँगा भी तो तुम बोलने कब दोगी? मेरा झूठ पकड़ लोगी? हाँ, मुझ में ये सलाहियत है। तो फिर बोलो, क्या पूछना चाहती हो? क्या मेरी कहानी से तुम्हें रकाबत का एहसास हुआ? उसने सवाल किया और मुझे हंसी आ गई। मैंने कहा, हाँ हो रहा है, बिल्कुल फितरी बात है। लेकिन खुश नसीबी की बात यह है कि मैं जिसने पहली बार तुम्हें सही महीनों में अपने महबूब की हैसियत से देखा, इस बात से आशना हो रही हूँ कि मेरा महबूब मुझे उतना ही चाहता है जितनी कि मैं ख्वाहिशमंद थी। मेरे लिए ये बड़े सरूर की बात है कि तुमने मुझसे ये पूछा था कि वो इंसान नुमा जानवर, मेरा मतलब है कि न्यूज़की से मेरे जिस्म को नोचता था, तो मैंने तुम्हें बताया था कि वो माजी की औरत थी, मैं नहीं। और मैं तो उस वक़्त तुम्हें सिर्फ एक किरदार की हैसियत से इसकी औरत की कहानी सुना रही थी। न्यूज़की ना मेरा कोई रिश्ता था, ना वो मेरी कुर्बत में था, बस हम माजी की सैर कर रहे थे। और यही कैफियत इस वक्त भी है। वो औरत असनाकिया थी जिसका मैंने रूप धारा, लेकिन मेरा रूह, मेरा जिस्म तो अलग ही था। मैं तो सिर्फ एक किरदार अदा कर रही थी, और ना मेरी उससे कोई जिस्मानी कुर्बत हुई, ना मेरे दिल में उसको कोई मकाम हासिल हुआ। वो असनाकिया के खेल थे जो तारीख का एक हिस्सा थी। ये सारी बातें थीं। मैं खामोश हो गया और उसकी तावील मेरी समझ में नहीं आ सकी। चलो, पिछली बार तो उसने न्यूज़की के मामले में एक रूप धार लिया था कि वो असल औरत थी, बकौले कुरोती कि वो खुद नहीं। लेकिन इस बार तो कुरोती ने यह एतराफ़ किया था कि वो जान बचाने के लिए भाग रही थी और वहाँ से असनाकिया का रंग इख्तियार करने की हदायत की गई। मैंने सवाल उससे कर डाला तो वह हंस कर बोली, हाँ मगर ये बात तुम्हारे इल्म में है कि वो एक बचपन था, और जो वजूद बचपन से लेकर जवानी तक रहा वो सिर्फ एक ख्याल था, मैं खुद नहीं। मुझे एकदम हंसी आ गई। कुरोती जो कुछ कह रही थी, हकीकी निगाह से देखने से मुझे वो तस्लीम नहीं हो रहा था। बड़ी अनोखी बात थी, नाकाबिले फ़हम और नाकाबिले यकीन। अलबत्ता मैंने ज़ीशान अली को समझाया कि बेटे, अपनी तवज्जो अपनी किताब पर रखो जिसे तुम्हें बड़ी मेहनत से तरतीब देना है। अगर इस तरह तुम मुतासर हुए तो ये तो गलत हो जाएगा। तुम क्यों अपने नुकसान पर तुले हुए हो? वह ज़माना कदीम की एक पुरइसरार शख्सियत है, एक दिलकशी की हामिल। तुम एक ऐसी औरत की मैयत में ज़िंदगी गुजार रहे हो जो अब आबे हयात पिए हुए है। आबे हयात की कहानियाँ बेशुमार लिखी गईं। मैंने खुद ऐसी कहानियाँ लिखीं जो सिर्फ मफरूज़ात पर मबनी होती हैं, लेकिन मेरी ज़िंदगी में ऐसा कोई किरदार आ जाएगा जो आबे हयात पिए हुए हो, वो मेरे लिए बड़ी अहमियत का हामिल था। चुनाचा मैंने खुद को संभाल लिया और हंस कर बोला, हाँ मैं ये एतराफ़ कर चुका हूँ कि जब तुम किसी के बारे में अपनी मोहब्बत का इज़हार करती हो तो मुझे अच्छा नहीं लगता। उसके चेहरे पर मसरत के नकूश मंजमद हो गए और उसने प्यार भरी आवाज़ में कहा, तुम मेरे महबूब हो ज़ीशान अली, मैं तुम्हें दिल से चाहती हूँ। जो कहानियाँ मैं तुम्हें सुनाती रही हूँ वो माजी की कहानियाँ थी और माजी गुजर चुका है। बस मेरा ये इल्म और मेरे अंदाज़ है कि मैं तुम्हें माजी का एक किरदार बनाकर वहाँ ले जाती हूँ, लेकिन वो किरदार हम नहीं होते। तुम खुद भी कभी महसूस करना, वो तो सिर्फ एक तसव्वुर होता है जो माजी में खो चुका है। मैं तो तुम्हारे सामने सिर्फ सदियां ज़िंदा कर देती हूँ और कुछ नहीं। वैसे मैं तुम्हें एक बात बताऊँ, ये हाल जो है ना, ये माजी से कहीं ज़्यादा खूबसूरत है। इस हाल में जो कुछ मैं देख रही हूँ उसे देख देख कर दंग रह जाती हूँ। इंसान क्या बन चुका है। ज़माना कदीम में जादू हुआ करता था और जादूगर, मगर वो मुश्किलें लिए इस दुनिया को मुश्किलात का शिकार करते रहते थे। खुद मेरा वास्ता भी इस तरह के जादूगरों से पड़ चुका है। मैं तुम्हें बता चुकी हूँ कि मैंने जो अलूम सीखे हैं ऐसे ही लोगों से सीखे जो माफूकल फितरत है। समझ गए ना मेरी बात? तो मैं इस हाल की बात कर रही हूँ, बल्कि तुमने पहली बार मुझे सुमन गुप्ती और उसके महबूब से रोशनास कराया तो मैं हिल कर रह गई। हुस्न इश्क की लातादाद दास्तानें माजी में मेरी आंखों के सामने से गुजर चुकी हैं। ना जाने क्या क्या हुआ, लेकिन आज जो कुछ हुआ, वो जो हो रहा है, उसने मुझे दंग कर दिया। चलो छोड़ो।
हम यूँ करते हैं ज़ीशानी आली के कुछ अरसे के लिए सब कुछ भूल जाते हैं। बेकौले तुम्हारे जो किताब तरतीब दे रहे हो उसकी तरतीब भी कुछ अरसे के लिए तुम रोक दो, वो सब बाद में कर लेना। मुझे अपने महबूब की हैसियत से तुम अपनी कुर्बत में ज़्यादा से ज़्यादा जगह। दर हकीकत जो लम्हात अब मैं गुजार रही हूँ वो मेरी सदियों की ज़िंदगी के सबसे दिलकश लम्हात हैं, क्योंकि उसमें मेरा महबूब मेरे साथ है। वो जिसे ज़िंदगी में सबसे पहले मैंने चाहा, तुमसे पहले मैंने किसी को दिल की गहराइयों से नहीं चाहा, बल्कि ऐसे ही हालात का शिकार रही जिसने मेरे सामने कोई ना कोई दास्तान बयान कर दी। तो मैं सुमन गुप्ती और उसके महबूब के बारे में जो कह रही थी, दिल हिला डाला था मेरा उस दास्तान ने, और जो कुछ मैंने अपनी आंखों से देखा वो सही मायनों में मुझे पागल करने का बाइस बन गया। मैं उकता गई हूँ अपने माजी से। तुम्हारी दुनिया बहुत दिलकश है, चलो घर से निकलते हैं, बाहर निकलते हैं, इस दुनिया को करीब से देखेंगे, प्लीज़ प्लीज़। और वो लिहाजत बड़े अंदाज में बोली तो मैं भी आमादा हो गया। लेकिन मैं आपको दिल की बात बताऊं मेरे करीबी अजीज़ों और दोस्तों, यानी मेरे पढ़ने वालों, और मैंने दिल में यही सोचा था कि ज़िंदा सदियां लिख रहा हूं और एक किरदार मेरी किताब का मरकज़ी किरदार है, बल्कि अगर दो भी कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि भंसाली मेरे लिए एक किरदार बेशक था, लेकिन उससे मेरा ज़्यादा वास्ता नहीं पड़ता था और मुझसे दूर ही रहता था। मतलब मेरा कहने का ये है कि मैं अपने उस किरदार को किसी भी तरह बदल नहीं करना चाहता था। वो अगर ये कह रही थी कि यहाँ से चला जाए और देखा जाए कि मेरी दुनिया कितनी दिलकश है, तो जब सदियों का ये बाब तकमील पा रहा होगा तो मैं उसकी ख्वाहिश के बारे में भी लिखूँगा और तहरीर करूँगा कि उसकी ख्वाहिश के मुताबिक तैयारियाँ की। सबसे पहले हमने अपना घर छोड़ना था तो हम दोनों बाहर निकल आए, और उसके बाद मैंने एक इंतहाई खूबसूरत 5 स्टार होटल में क़याम किया, और इससे पहले भी होटलों में क़याम कर चुका था। लेकिन इस वक्त एक हसीन औरत मेरे महबूब की हैसियत से मेरे साथ थी, जिस पर मेरा पूरा तसर्रुफ था। कुरोती यहाँ आकर मुकम्मल तौर पर यहाँ के प्रोग्रामों में हिस्सा ले रही थी और बहुत खुश थी। बारहा उसने होटल के खूबसूरत हवाल में बैठकर मुझसे इस बात का इजहार किया था कि मेरी ये दुनिया माजी की दुनिया से कहीं ज़्यादा हसीन है। उसके मशागल और यहाँ की ज़िंदगी भी बड़ी दिलकशी है। वो सब कुछ है यहाँ जो माजी के राजमहलों या अजीम तरीन शहरों में नहीं होता। मौजूदा दौर शायद सदियों के तारीख में सबसे खूबसूरत दौर हो, उसका यही कहना था, और मुझे भी उसके साथ लुत्फ़ आ रहा था। एक दिन मैंने उससे पूछा कि अभी वो यहीं क़याम करेगी या हम बाहर की सियाहत का आगाज़ करें। तब उसने जवाब दिया कि नहीं, थोड़ा वक्त यहीं गुजारें। ये तब्दीली मुझे बहुत अच्छी लगी। मैं अपने मसूदे के कागजात यहीं उठा लाता हूँ, थोड़ा सा वक्त मैं अपनी किताब लिखने में भी सिर्फ करूँगा। उसने इसकी इजाज़त दे दी और मैं अपने घर आ गया। यहाँ मैंने खासा वक्त गुजारा, थोड़ा सा यहीं बैठकर लिख लिया, और उस वक्त शाम के 5:30 बजे जब मैं वापस होटल पहुँचा, मेरे कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था। मैं अंदर दाखिल हो गया, हालांकि अभी शाम ही थी, लेकिन कमरे में मदम बल्ब रोशन था, और मुझे हैरत हुई। बड़े सोफे पर कोई होटल के बेडरूम का कंबल ओढ़े हुए बैठा हुआ था, और उस कंबल ने उसका चेहरा तक ढक रखा था। मैंने इधर उधर निगाहें दौड़ाईं और फिर मेरे मुंह से निकला कुरोती। जवाब में मुझे बेख्तियार रोने की आवाज़ सुनाई दी, एक अजीब सी आवाज़ जिसे सुनकर मैं सख्त हैरान रह गया। मैंने रोने की आवाज़ पहचान ली, वो कुरोती ही थी। मैं हैरानी से 2 कदम आगे बढ़ा और उसके करीब पहुंच गया। कुरोती, क्या हुआ, क्या हो गया? मैंने सवाल किया और वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। इतने अरसे की रफ़ाकत में पहली बार मैंने उसे इस तरह रोते हुए देखा था। मैंने उसकी जानब हाथ बढ़ाए तो उसने जल्दी से अपना चेहरा पीछे कर लिया और बोली, नहीं, मुझे मत देखो, मुझे मत देखो, मेरे साथ बुरा हुआ। और उसकी आवाज़ में एक अजीब सा दर्द बसा हुआ था। मुझे अपना चेहरा तो दिखाओ, आखिर हुआ क्या? वो कमबख्त जल दे गया मुझे। आखिर वो मेरे खिलाफ अपनी साजिश में कामयाब हो गया। कौन? मैंने हैरानी से पूछा। गौतम भंसाली। मार गया, वो मुझे मार दिया। और तुम ज़रा वाशरूम में जाओ, बाथिंग टब देखो और उसके आसपास आहो, पता नहीं क्या हो गया है। क्या हुआ? वाशरूम, बाथिंग टब। मेरी अक्ल मेरा साथ छोड़ती जा रही थी, ताहम मैं वाशरूम की जानब बढ़ गया। 5 स्टार होटल का शानदार वाशरूम जिस कदर शानदार हो सकता था, यहाँ तो किसी किस्म की बदबू वगैरह का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। लेकिन जैसे ही एयर नाइट दरवाज़ा खुला, मुझे यूँ लगा जैसे शदीद बदबू का तूफ़ान उमड़ पड़ा, और ये बदबू भी इंतहाई अजीब और हैरत अंगेज़ किस्म की तेज़ाबी बदबू थी।
मुझे एकदम से उबकाई सी आने लगी, लेकिन हैरत और तजस्सुस ने मुझे अपने आप को संभालने पर मजबूर कर दिया। मैं 2 कदम आगे बढ़ा। तब मैंने बाथिंग टब के नज़दीक फर्श पर एक अजीब सी चीज़ देखी। ब्राउन रंग का एक ऐसा महलूल था जो जगह जगह पर ज़मीन पर पड़ा हुआ था और वो वाश बेसन तक गया था और एक लकीर सी बनती चली गई थी। गाढ़ी ब्राउन रंग की लकीर जो किसी सयाल की थी। वाश बेसन में भी वैसा ही गाढ़ा ब्राउन सयाल पड़ा था। मेरी हैरानी शिद्दत को पहुंची और मेरी समझ में नहीं आया कि ये सब क्या है। बदबू इस कदर शदीद थी कि मैं ज़्यादा देर तक न रुक सका और बाहर निकल आया। वो रोए जा रही थी। खुदा के लिए मुझे बताओ तो सही करोती, हुआ क्या? ये कंबल हटाओ चेहरे से और अपने बदन से। ये सब क्या है? मेरा बदन बेलबास है, इस पर कुछ नहीं। अरे क्यों? वो जलकर खाकस्तर हो गया। अब मैं बेलबास हूँ मुकम्मल तौर पर। कैसे? मैंने अपने आप को संभाल कर पूछा। बात ही समझ में नहीं आ रही थी कि हुआ क्या है। गौतम बंसाली आया था, लेकिन कमीना तुम्हारे रूप में था। बिल्कुल तुम्हारा ही अंदाज इख्तियार किया हुआ था, जिसकी लाजमी तौर पर उसने ज़बरदस्त रहल-सहल की होगी। अच्छा फिर? वाशरूम का दरवाज़ा लॉक नहीं किया था। मैंने ज़रूरत ही न समझी। बस मुझे अंदाज़ा नहीं था कि कोई इस तरह अंदर आ जाएगा। वो आ गया, दरवाज़ा खोलकर अंदर आ गया। मैं बात ले रही थी। मैंने मुस्कुराकर उसे देखा तो वो भी तुम्हारे अंदाज में मुस्कुराता हुआ मेरे करीब आ गया। मैंने कहा कि ये क्या हरकत है? बाहर जाओ, मैं नहा रही हूँ। उसने कोई जवाब न दिया। गालबन वो तुम्हारी आवाज़ नहीं इख्तियार कर सकता था। अलबत्ता उसने अपनी जेब से एक शीशी निकाली। बड़ी खूबसूरत शीशी थी, जिस तरह तुम्हारे पास सेंट की शीशियाँ होती हैं। मैं यही समझी कि वो कोई शरारत कर रहा है और बाथिंग टब में कोई सेंट डालना चाहता है। मैंने हंसकर तुम्हें देखा तो उसने सेंट की पूरी शीशी बाथ टब में उलट दी, जिसमें पानी भरा हुआ था। ये क्या हरकत है? मैंने हंसकर पूछा तो वह बोल पड़ा, ये एक ऐसी हरकत है कोरोती जो मैंने इंतहाई मजबूरी के आलम में की। और मैं उसकी आवाज़ पहचान ली थी। गौतम बंसाली तुम? हाँ, शायद मुझे अपने इस किए पर दुख होता, लेकिन अब नहीं। वो तुम्हारे गुस्ल के दौरान भी इस तरह तुम्हारे पास आ सकता है जबकि तुम बेलबास हो। और उससे उसकी तुम तक पहुंचने का मुझे अंदाज़ा हो रहा था। और उस चीज़ ने मुझे बिल्कुल मुतमिन कर दिया कि मैंने तुम्हारे साथ जो कुछ किया वो गलत नहीं। मैं हैरत से आंखें फाड़े उसे देखती रही और उसी वक्त मुझे एक अजीब सा एहसास हुआ। मुझे यूँ लगा कि बाथिंग टब का पानी आहिस्ता आहिस्ता सनसनाहट पैदा कर रहा है। वो उबलने लगा। मैं दहशत ज़दा हो गई। मैंने टब के किनारे पकड़ कर उठने की कोशिश की, लेकिन मेरे हाथ फिसल गए और मैं टब में डूब गई, चेहरे समेत। और गौतम तुमने एक भयानक कहका लगाया और बोला, हाँ कोरोती, मुख्तलिफ अदवार में मैं तुम्हारे नज़दीक आने की कोशिश करता रहा और तुमने मुझे धत्कार कर खुद से दूर भगा दिया। बेशक मैं खूबसूरत नहीं था, बेशक मैं तुम्हारे काबिल नहीं, लेकिन मैं तुमसे मोहब्बत करता था। मैंने सदियां तुम्हारे चाहते हुए गुजारी, लेकिन ये कल के लोग जो तुम्हारे करीब आते हैं और तुम्हारी कुर्बत से सरशार हो जाते हैं, मेरे लिए इतने बड़े दुख का बायस होते हैं कि मैं तुम्हें अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। कितने किरदारों का नाम लूँ मैं? तुम मोहब्बतें बदलती रहती हो। तुमने हर एक को अपनी कुर्बत बख्शी। तुमने सेवन अपोस, डेबलन और न जाने किस किस को दिल से चाहा और तुम्हारे हसीन वजूद से सरशार हुए हैं। और मैं माही बेआब की तरह तड़पता रहा हूँ और मैंने बहुत से मौक़ों पर तुम्हारी हिफाजत भी की, वरना तुम्हारे रकीब तुम्हें मुख्तलिफ तरीक़ों से तकलीफ़ देना चाहते थे। मैं एक खिदमतगार की तरह तुम्हारे साथ साथ रहा, लेकिन मैंने अपनी इन बदनसीब आँखों से उनसे तुम्हारी रग़बत और मोहब्बत देखी और खून के आंसू रोता रहा हूँ। और लाश, सिकंदर और न जाने कौन कौन, सिर्फ मैं एक ऐसा बदनसीब था जिसे कभी तुम्हारी एक मोहब्बत भरी निगाह भी ना मिल सकी। बताओ मुझ जैसे शख्स के दिल में क्या होना चाहिए था। और अब इस दुनिया के इस शख्स से जिसका नाम ज़ीशान अली है, तुम इस तरह बेतकल्लफ हो जैसे माजी में तुम अपने दूसरे मनपसंद लोगों से रही। तो आखिरकार मैंने एक फ़ैसला कर लिया। मैंने सोचा कि मैं भी तुम्हारी तरह जीता जागता इंसान हूँ। ये अलग बात है कि मेरी बदनसीबी ने मुझे मौत से दूर कर दिया। काश कि मैं आब हयात ना पीता, काश कि अमृत जल मुझे ना मिल पाता, तो अब कब का मर खप गया होता और मुझे रकाबत के ये सदमे बर्दाश्त ना करने पड़ते। लेकिन नसीब इसी का नाम है। तुम भी ज़िंदा हो, मैं भी ज़िंदा हूँ। मैं तुम्हें चाहता रहूँगा और तुम दूसरों को चाहती रहोगी। मैंने आखिरकार एक हल सोच लिया। जो चीज़ मैंने तुम्हारे इस नहाने के पानी में डाली है वो तुम्हें एक ऐसा लुत्फ़ देगी कि याद रखोगी।
तुम्हें चाहने वाला कोई भी ना होगा सिवाय मेरे। और फिर करोती जब तुम नफरतों से थक जाओ और ये महसूस कर लो कि तुम्हारी नफरत ने गौतम भंसाली को किस तरह दर्दो कर्ब कर दिया होगा, तो मुझे आवाज़ देना, मैं आ जाऊँगा। मैं तुम्हें उस वक़्त भी चाहूँगा, समझी। और जब भी आवाज़ दोगी, और ऐसा ही हुआ। और तुमने जब भी मुझे पुकारा है, मैं तुमसे दूर नहीं रहा। ये कहकर वो वापस मुड़ा। लेकिन अचानक ही मुझे यूं लगा जैसे टब का वो खोलता हुआ पानी अचानक ही सर्द हो गया, बर्फ़ की तरह सर्द, पहले गर्म और फिर सर्द। और मैंने इस पर भरपूर कुव्वत से टब के किनारे पकड़े और बाहर निकलने की कोशिश की, और इस बार मैं कामयाब हो गई। लेकिन मेरे बदन को सख्त सर्दी का एहसास हो रहा था। जब मैंने बाहर पाँव रखा तो अचानक ही मुझे यूं लगा जैसे मेरे जिस्म का गोश्त एक ब्राउन मादे की शक्ल में ज़मीन पर बहने लगा हो। मैं हैरान हो गई। बड़ी मुश्किल से मैं चंद कदम आगे बढ़ी और इस शफाफ आईने के सामने से गुजरी। जो हो रहा था तुम नहीं सोच सकते ज़ीशान अली, तुम नहीं सोच सकते। मुझे अपना चेहरा इस तरह लगा जैसे कोई किसी तस्वीर को खुरच देता है। मेरे चेहरे पर जगह जगह धब्बे पड़ रहे थे और आहिस्ता आहिस्ता मेरा चेहरा बदनुमा होता जा रहा था। मेरे बाल गुच्छों की शक्ल में मेरे सर पर से उतरने लगे। बेमुश्किल तमाम मैंने अपना थोड़ा सा चेहरा देखा और मेरे हलक से बेहानक चीख निकल गई। मैं न जाने किस तरह बाथरूम से बाहर आई। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैंने कंबल ओढ़ा और यहाँ बैठ गई। ये तुम्हारे आने से कुछ लम्हे पहले की बात है। गौतम भंसाली यहाँ से जा चुका है। ओह मेरे खुदा, ज़रा कंबल तो हटाओ। नहीं नहीं, मैं अपनी सूरत नहीं देख सकती। ना जाने क्या हुआ, ना जाने क्या हो गया, वो बोली। लेकिन मैंने आगे बढ़कर उसके बदन से उसका कंबल घसीट लिया। क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं एक ऐसे हसीन वजूद का जो कुछ लम्हे पहले इस कदर दिलकश हो कि मेरे होटल के क़याम के दौरान बहुत से लोगों ने मुझसे करीब होने की कोशिश की, सिर्फ करोती की वजह से। वो इंतहाई दिलकश थी और इस कदर हसीन लग रही थी कि बयान से बाहर। लेकिन इस वक्त मेरे सामने एक ऐसा वजूद था जिसके चेहरे पर गोश्त नाम की कोई चीज़ नहीं थी। नाक गायब हो गई, आंखों की जगह गहरे गड़े थे, सर पर बालों का नामो निशान नहीं था। इस कदर बेहानक वजूद के इंसान उसे देखकर मौत के गोश्त में जा सकता है। फिर मेरी निगाह के जिस्म पर पड़ी और दर हकीकत ये है कि अगर झूठ बोलूं तो ड्रामा बाजी होगी। मुश्किल ही से यकीन किया जाएगा कि मेरे बदन में भी सर्द लहरें दौड़ने लगी, खौफ की सर्द लहरें। और उसका चेहरा मेरी जनब उठा हुआ था और उसने रोंदी हुई आवाज़ में कहा, ज़ीशान अली, वो कमबख्त चाल चल गया। मैं नहीं जानती कि उसने किस दीवानगी के आलम में यह किया, क्योंकि वो दिल से मेरा परस्तार था, मेरे हुस्न का दीवाना। लेकिन मेरा ख्याल है कि सदियों की तपस्या के बाद भी उसे कुछ नहीं मिल सका, तो वो अपने हवास खो बैठा। ये तो मैं तुम्हें बता चुकी हूँ कि उसके पास भी इल्म था। बड़े बड़े ज्ञानियों से उसने बहुत कुछ सीखा और इस्तेमाल कर गया। लेकिन देखो क्या हो गया, देखो मेरा क्या हुआ। उसने आहिस्ता से कहा और आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई ड्रेसिंग टेबल के पास पहुँच गई। मेरे होश हवास गुम थे। मैं अपने सामने एक इंसानी ढांचे को चलता हुआ देख रहा था। ढांचे सूखी हड्डियों वाले होते हैं, लेकिन ऐसा ढांचा जिसके वो गाढ़ा बदबूदार सियाल अब भी बह रहा था और उसका थोड़ा थोड़ा गोश्त अब भी उसके जिस्म से चिमटा हुआ था। लेकिन इस तरह के उस गाढ़े सियाल की शक्ल में एक लकीर बनाता हुआ ड्रेसिंग टेबल तक गया। बदबू थी कि इंतहाई से ज़्यादा और जहन को में काबू में रखना मुश्किल हो गया। अचानक मुझे उसकी हौलनाक चीख सुनाई दी। ड्रेसिंग आईने में शायद पहली बार उसने अपने पूरे हुलिये को देखा था और उसके बाद तो वह चीख की मशीन बन गई। वो बुरी तरह धाड़ रही थी और मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। अचानक ही वह दरवाजे की जानब भागी। बदहवासी के आलम में उसने ये किया था। दरवाज़ा खोला और उसी तरह चीखती हुई बाहर निकल गई। मैं अब भी गुमसुम खड़ा था। लेकिन उसके बाद बाहर से जो चीखें सुनाई दी, उन्होंने मुझसे मेरे होशो हवास छीन लिए। उन चीखों में मर्दों की चीखें भी थी, औरतों की चीखें भी। सब चीख रहे थे और बुरी तरह भगदड़ मच गई। उठक पटक की आवाज़ें आ रही थी। न जाने क्या हो रहा था। मैंने एक झुरझुरी सी ली और उसके हौलनाक सूरत हाल से निमटने के लिए मैं खुद भी दरवाजे से बाहर निकल आया। मैं उस सियाल मादे से बच बच कर निकल रहा था जो ज़मीन पर काफ़ी हद तक फैला था और उसकी बदबू साथ साथ सफ़र कर रही थी। बाहर तो क़यामत मची हुई थी। कमरों की गैलरी में लोग इधर उधर भाग रहे थे। दरवाजे धड़ाधड़ बंद हो रहे थे और उसके बाद ये आवाज़ें नीचे से आने लगीं। गालबन वो लिफ्ट में जाने की बजाय सीढ़ियाँ उतरने लगी। लिफ्ट वगैरह का तो खैर तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता, और जिस मंजिल से वो गुजरती वहाँ खौफनाक तासरात छोड़े जाती। पूरे होटल में अफरा तफरी फैल गई।
इंतज़ामिया के अफराद भागे भागे फिर रहे थे। लोग एक दूसरे को बता रहे थे कि वो खौफनाक बला कहाँ से नमूदार हुई, वो इंसानी ढांचा कौन से कमरे से निकला। मेरे कमरे की खसूसन निशानदही हो गई थी। मैं सीढ़ियों से ही उतरता हुआ नीचे आ गया। हर तरफ एक हौलनार भगदड़ मच गई। लोग चीख चिल्ला रहे थे। कुछ औरतें दहशत से बेहोश हो गईं। कुछ बच्चे भी थे जो भाग भाग कर पता नहीं कहाँ से कहाँ चढ़ गए। यही हाल ग्राउंड फ्लोर का भी हुआ। मैं ग्राउंड फ्लोर पर आ गया, लेकिन अब वो हाल में नहीं रुकी थी और दरवाजे से बाहर निकल गई। मुख्तसर ये कि उस वक्त जो कुछ हुआ वो एक नाकाबिल यकीन सा अमल मालूम होता था, जिसकी सही तशरीह भी मैं नहीं कर सकता। हकीकत मुझे मालूम थी, लेकिन उसके बाद मुझे गौर करना था, क्योंकि मेरे साथ जो कुछ होता वो मेरे लिए बड़ा अजाबनाक होता। यकीनी तौर पर होटल में जो अफरा तफरी फैली थी, उससे शानदार होटल के नुकसानात भी होने थे। अगर मैं सारी सूरत हाल बता देता तो मेरी गर्दन गिरफ्त में आ सकती थी और ये मामला पुलिस की तहवील में भी जा सकता था।